Hello students. This is the lecture 2 of your digital image processing. Now in this lecture we're studying about the image representation. Okay, basically digital image representation. तो image में by default you must consider whatever image we are talking here as a digital image only, because we are not processing the analog image. Okay, this is all about the digital image and all the processing related to digital image only. Now जैसे last lecture में बताया था, यहाँ पे again we have to define the same thing. Yes, an image, it is defined as a two-dimensional function fxy, where xy are the spatial coordinates. Spatial means the plane coordinate, okay? And the amplitude of f at any pair of coordinate, it is called the intensity of the image at that particular point. Intensity को ही हम gray level भी बोलते हैं, okay? Now, when this xy and the amplitude values of f, यानी amplitude value मतलब इंटेंसिटी वैल्यू, वही जो मैंने वैल्यू बताई थी, जो कि xy मान लो 10,20 है, तो इंटेंसिटी अगर 128 है, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ. अगर ये तीनों चीजें फाइनाइट है, देन वी कॉल इट अ डिजिटल इमेज. ओके, तो मतलब ऑफ कोर्स वही हमने रेंज को क्या करा है, डिफाइन कर दिया है, restrict कर दिया है. We have limited the range to a particular value and we call it as a digital image. Now in other words, an image is what? It can be defined as a two-dimensional array specifically arranged in rows and columns. Okay, तो मेरे पास अब rows और columns यानी horizontal axis में और vertical axis में will have some values and we are counting it as rows and columns. Now digital image is composed of finite number of elements, each of which elements have a particular value at a particular location. See, this is what they are trying to say about the gray levels. मतलब एक particular location पे कोई एक particular value होगी और this particular value we call it as gray level, और ये location particular location क्या है, x, y यानी coordinate value. Okay. Now these elements are referred to as picture elements. ये जो elements है ना, जो मतलब image elements या फिर हम उसको pixel बोलते हैं. Pixel is basically most widely used to denote the elements of a digital image. मतलब smallest unit है basically. Now we have got types of image. Okay, कितने types of image होंगे? तो we have divided the image into 4 types. Binary image. First is a binary image. Then black and white image. Then 8-bit color format. Next we have final 16-bit color format. See, binary image क्या है? As the name suggests, we know it contains only 2 pixel elements, that is 0 and 1. Binary है, we must have 2 values only and they are 0 or 1, where 0 refers to black and 1 refers to white. See, देखो यहाँ पे by default we of course have 0 and 1 as 0 को हमने black दे दिया by default. ठीक है, by default ऐसा होता है कि 0 is black and 1 is white. इसको हम मोनोक्रोम इमेज भी बोलते हैं. बट बाइनरी इमेज का मतलब ये नहीं होता है कि बस ब्लैक और व्हाइट ही ले सकते हैं. वी कैन टेक एनी ऑफ द कलर्स, लेकिन हाँ वो स्पेसिफाई करना होगा. वी नीड टू स्पेसिफाई इट. ओके, और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज क्या होता है, इस इमेज में वी आर रेस्ट्रिक्टेड टू ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स ओनली, एंड सो दिस इमेज इज नोन एज ब्लैक एंड व्हाइट इमेज. ठीक है, दिस इज द मेन डिफरेंस इन बिटवीन बाइनरी एंड ब्लैक एंड व्हाइट इमेज. Now the next type of image we have is an 8-bit color format. See, this type of image is also known as grayscale image. ठीक है, it is the most famous image format. इसको स्टडी के पर्पज में यानी यूज करने के पर्पज में एप्लीकेशंस में हम एप्लीकेशंस नहीं मतलब पढ़ने के लिए बिगिनर्स पर्पज में सबसे ज्यादा इस इमेज को यूज किया जाता है, इस फॉर्मेट को यूज किया जाता है. अब 8 बिट है, मैंने फॉर्मूला लास्ट क्लास में बताया था, कैपिटल L इक्वल्स टू 2 की पावर K. यहाँ पर K क्या है, 8, यानी I'll have it, तो it has 256 different shades of colors in it and it is commonly known as grayscale image. ठीक है, and in this format 0 stands for black. 0 क्या होगा, black. अब देखो 256 shades हैं. 256 shades है मतलब if I start the counting from 0 it will end up to 255. So यहाँ पे 0 stands for black and 255 stands for white. और जो 127 है मतलब इन बिटवीन, एग्जैक्ट इन बिटवीन 127 है, दैट इज ग्रे. हाउएवर द नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम 1 to 126 और फिर 128 से लेकर 254 तक के कलर्स भी ग्रे ही होंगे, बट दे विल बी लाइट ग्रे और डार्क ग्रे और इन बिटवीन ऑल दीज. ओके, ये सारे शेड्स ग्रे ही होंगे, बट कुछ मतलब थोड़ा डार्क, थोड़ा लाइट, थोड़ा और डार्क, ऐसे है ना. सी, जो नंबर्स 0 से लेकर, देखो 0 ब्लैक है, ठीक है, और 127 इज ग्रे,
तो मतलब 0 से लेकर 126 तक के जो 1 से लेकर 126 तक के जो ग्रे होंगे वो थोड़ा डार्कर ग्रे होंगे, ऑफ कोर्स, है ना। और जैसे ही ये नंबर 128 से लेकर 254 तक जाएगा, ये धीरे धीरे एकदम ग्रे से व्हाइट की तरफ जाने लगेगा। तो मतलब अगर मैं, मतलब सिंपल सा है, मतलब ऑफ कोर्स तुम समझ गए हो कि जब 0 से हम 127 की तरफ जाएंगे तो 0 मान लो ब्लैक है, ठीक है, तो 1 ब्लैक से थोड़ा कम, फिर ऐसे ऐसे लाइट लाइट होते होते 127 पर हम ग्रे पर आएंगे। फिर 127 से जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, 128 पे इट विल बी लाइटर देन ग्रे, फिर और लाइटर करते करते हम फाइनली जब हम 255 पे पहुंचेंगे तो इट विल बी completely white in color. So this is 8-bit format. Now 16-bit color format, it is actually a color image. ये एक color image की बात हो रही है। अब फिर से देखो 16-bit आया, मतलब मेरे पास कैपिटल L यानी ग्रे लेवल्स कितने होंगे, कैपिटल L equals to 2 की पावर k. Here k value is 16. So that means gray level will be 2 की पावर 16. 2 की पावर 16 is actually 65,536. सी द नंबर। इतने सारे डिफरेंट कलर्स होंगे। देखो जितना इजी लगता है ना, द प्रोसेसिंग इज टू डिफिकल्ट। प्रोसेसिंग में 65,536 आर सच अ बिग नंबर वाइल हैंडलिंग कलर्स। इतने कलर होना, इनके साथ ऑपरेशन करना इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। इसलिए वी यूजुअली फ्रॉम द स्टार्टिंग वी डोंट ऑपरेट विद कलर इमेज। ऑफ कोर्स जो ट्रेंडिंग में है और फिलहाल जो ऑपरेशन हो रहे हैं, जिन पे रिसर्च चल रहा है, और रिसर्च क्या मतलब आजकल इनफैक्ट हम भी जो यूज कर रहे हैं अपने फोन पे भी, हम कहाँ ब्लैक एंड व्हाइट कलर इमेज यूज करते हो क्या? हम नहीं करते ना, मतलब हम ग्रे स्केल में भी नहीं करते। ऑफ कोर्स एक दो मोनोक्रोम पिक्चर्स ले लेते हैं, बट दैट्स इट। अब पूरे हमारे फोन में सारे पिक्चर, सोचो बस नॉर्मल पिक्चर की बात कर रही हूँ मैं, वो भी हम नहीं लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तो जस्ट लीव थिंकिंग अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज या फिर पिक्चर्स, कुछ भी हम ऐसा नहीं रखते। तो मतलब जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर वर्किंग ऑन कलर इमेजेस। तो ऑपरेशन इसी पर हो रहे हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर स्टडिंग पर्पज वी नीड टू स्टडी ग्रे स्केल, ताकि हम कलर इमेज का एटलीस्ट बेसिक प्रिंसिपल तो समझ पाए। काम करना तो तब जब हम पहले बेसिक प्रिंसिपल समझे। तो सो वी स्टार्ट विद, ऑफ कोर्स वी स्टार्ट विद इजी थिंग्स। तो हम ग्रे स्केल से स्टार्ट करते हैं। आवर ऑल दी ऑपरेशंस विल बी ऑन ग्रे स्केल इमेजेस। ऑपरेशन सेम होता है कलर के लिए भी, बट येस इट विल इन्वॉल्व मोर नंबर ऑफ ऑपरेशंस। हमें एक ही ऑपरेशन ज्यादा बार करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास नंबर्स ज्यादा है इन कलर फॉर्मेट। ओके, सो दिस इज अबाउट द टाइप्स। नाउ इमेज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो द मोस्ट यूज्ड फॉर्म ऑफ इमेज इज इन मैट्रिक्स। ठीक है, इमेज को हम मैट्रिक्स फॉर्म में यानी रोज और कॉलम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और वो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जो एक्स और वाई है ना, बस इसकी जगह पे कोऑर्डिनेट वैल्यू रख दो। तो 0 0 0 1 0 2। यहाँ पर n क्या है? m, n। m will represent the number of rows while n will represent the number of कॉलम। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम अपने इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सी दो चीजें, ये तो हम ऐसे मैनुअल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। इमेज को जब हम डिजिटल इमेज को मैटलैब में रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो क्या होता है, द ओनली डिफरेंस इज दैट ये जो 0 0 था, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 1 1। यानी मैटलैब में 0 0 से नहीं ओरिजिन स्टार्ट होता है, इट गेट स्टार्टेड फ्रॉम 1 1। तो दैट इज द ओनली डिफरेंस। अब ये यहाँ पे 1 1 है, तो ऑफ कोर्स जो पहले 1 0 था, इट विल बिकम 2 1 हियर एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज द ओनली डिफरेंस। अब इसमें हमें ऐसा डिफरेंट करना नहीं है। सिस्टम ऑटोमेटिकली, मैटलैब में सिस्टम ऑटोमेटिकली ऐसा बाय डिफॉल्ट है कि द ओरिजिन ऑफ द इमेज विल ऑलवेज बी टेकन एज 1 1। हाउएवर इन मैनुअल ऑपरेशंस वी विल टेक द ओरिजिन ऑफ एन इमेज एज 0 0। ओके, नाउ इसके बाद वी हैव the applications of digital image processing. See, this digital image processing, it is a subject which has got wide and versatile application. Iske today it can be seen almost everywhere. Name a field and you will have its application there. मतलब इतना ज़्यादा it has delved its path into almost every walk of life. Okay, so some of its applications, wide applications, which is image sharpening. सबसे फर्स्ट है image sharpening and restoration. देखो जितने भी अपने फोन में हम sharpening, restoration यानी जितने भी ये blurring, de-blurring, conversion, detecting edges, ये सारे काम होते हैं ना, ये इसी का मतलब इसी का सब फील्ड है। ओके,
Okay. Next we have got medical field. Medical field में भी इतना ज्यादा एडवांसमेंट हो गया है, अभी नहीं हमेशा से पहले भी था, अब तो और ज्यादा होते जा रहे हैं ड्यू टू इट बीइंग मतलब, और ये सारा इमेज प्रोसेसिंग का ही ऑपरेशन है जितने हमें लगते हैं, जैसे गामा रे इमेजिंग, एक्सरे इमेजिंग, मेडिकल सिटी स्कैन होता है, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग, ये सारे दे ऑल आर बेसिकली द एप्लीकेशंस अंडर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग ओनली. देन द नेक्स्ट दैट कम्स इज रोबोट विजन. देखो रोबोट में इसके ऑपरेशंस तो हमेशा से चलते आ रहे हैं, बट ये लाइक हर्डल डिटेक्शन, बीच में कुछ आना, फिर जो लाइन फॉलोवर रोबोट्स होते हैं, दे आर ऑल अंडर, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजिटल इमेज ओनली. पैटर्न रिकॉग्निशन, ये क्या है ना, मतलब जैसे जो कार्स होते हैं उनके जो नंबर प्लेट्स होते हैं आजकल मैनुअली रीड नहीं होता, वो मशीन रीड करता है. तो मशीन जो रीड करता है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें दे आर ये एक फर्दर एक सब्जेक्ट है पैटर्न रिकॉग्निशन, विच इज देन अगेन अ सब्जेक्ट अंडर DIP. ओके. देन वीडियो प्रोसेसिंग. ऑफ कोर्स वीडियो प्रोसेसिंग एक अलग फील्ड है, बट उसका जो बेसिस है ना, वीडियो क्या है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स ही तो है. तो इट कैन ऑल्सो बी फ्रेम्ड एज अ वेरी वास्ट example under digital image processing. So yes, there are many applications, out of which these are some of the main applications, and you will get its application in almost every walk of life today. Okay, so this was it in this lecture. We'll continue with this and in the next lecture.